वेलकम एवरीबॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री प्रेम शरण सत्संगी महाराज जी की, जो कि वर्तमान समय में राधा स्वामी मत के गुरु हैं दयालबाग आगरा में। उनका एक संदेश का एक वीडियो है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और उसमें उन्होंने रचना से पहले की स्थिति के बारे में बताया है और राधा स्वामी धाम के बारे में बताया है और परमात्मा जो शून्य अवस्था में है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उसके बारे में बताया है। ये तीनों चीज़ों के बारे में उन्होंने अपनी एक संदेश की वीडियो में जानकारी दी है। और आपके सामने मैं दो वीडियोस मीन टू से दो क्लिप्स आपके सामने रखूँगा और उसके बीच में कुछ सवाल जो बनते होंगे वो मैं आपके सामने रख दूँगा कि कुछ ऐसे जिज्ञासा के सवाल हैं जो आपको सामने राधा स्वामियों के रखने चाहिए। तो ये जो वीडियो है ये लोगों के लिए है, उनकी भलाई के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए। तो फिलहाल जो ये अभी वीडियो है ये आपके सामने। Source of spiritual power, and that fountainhead of spirituality, which is the infinite spiritual source or reservoir, is known as Supreme Creator or Being, and it has the features of supreme intelligence, bliss and energy, and also luminosity. It does not have any form. It does not have any shape. It is all energy, intelligence, bliss and luminosity. In the pre-creational condition, the Supreme Being was in a state of Shunya Samadhi, absolute self-absorption. And even in this pre-creational state, there existed an eternal polarization in the Supreme Being. That is, there existed a positive pole of spirituality and a negative pole of spirituality. And the Supreme Being possessed three distinct regions, namely the infinite positive pole, which was the infinite region of totality, which could be likened with the head of the Supreme Being. And then the region of the neutral zone, which we could consider his body. And finally, the region of the nether or lower pole or negative pole, which had lowest spirituality, which you could liken as his feet. But it does not have any form. It does not have any shape. It does not have any boundaries. It is infinite. So this Supreme Being was in a state of absolute self-absorption, and these spirit forces in the region of the lower pole were in comatose condition, and they were not even aware of the existence of the Supreme Being. The Supreme Being, of course, knew about his feet or the nether pole with lower degree of spirituality. But even that nether pole in the pre-creational condition had high degree of spirituality. But the potential difference, as it were, in spirituality between the positive pole, infinite positive pole, and the nether pole was extremely large. Out of the Supreme Being, positive infinite pole, was Radha. And the sound which emanated from the great upheaval which took place within the Supreme Being was accompanied by Swami. So Radha Swami in fact became the first manifestation of the Supreme Being at the time of creation. सवालों से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक इससे पहले वीडियो प्रवृत्तियों की बनाई गई है कि राधा स्वामी धाम से भी आपको नीचे क्यों आना पड़ा। कहीं ना कहीं इसका जवाब इन प्रश्नों में मिल जाता है और कहीं ना कहीं एक वीडियो में एक हमारे सामने एक जो पिक्चर है क्लियर हो जाती है कि आखिरकार राधा स्वामी धाम जो धुर का स्थान है वहाँ से भी नीचे क्यों आए।
और जहाँ तक सवालों की बात है, सबसे पहला सवाल, इस वीडियो में कहा गया है कि सबसे पहले जो स्थिति थी, जो पूर्ण परमात्मा था, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड था, यानी कि स्वयं में ही स्थित था और वो असीम था, इन्फिनिट था। और साथ में ही एक चीज़ कही जाती है कि 3 पोलराइजेशन थी, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी आ जाती है। और जो पॉजिटिव पोल था, ये तीनों पोलों में जो ये पॉजिटिव पोल था वो इन्फिनिट था, यानी कि असीम था। और जो न्यूट्रल और नेगेटिव था, और जो नेगेटिव पोल में था, और वो उसमें जो चेतना थी वो शून्य अवस्था में थी। शून्य मतलब कि जिसको पता नहीं होता कि एक्चुअल में सुप्रीम या परमात्मा है कौन। लेकिन परमात्मा को वो जो नेगेटिव पोल में विराजमान थी एनर्जी, उसके बारे में सब पता था। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आ जाती है कि ये सारी की सारी कहानी रचना से पहले है। अभी राधा स्वामी धाम की रचना हुई नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी रचना नहीं हुई, क्योंकि ये रचना से पहले की स्थिति है। और आगे इस वीडियो में बताया जाता है कि राधा स्वामी धाम परमात्मा की सबसे पहली रचना है। जब उन्होंने रचना शुरू की थी तो रचना, सबसे पहली रचना राधा स्वामी धाम ही है। और यहाँ पर अब सवाल ये आ जाता है कि रचना से पहले जब हम कह देते हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पोल, तो ये कोई भी चीज़ सही गलत, दिन रात और कोई भी चीज़ों के जब हम गुणों को देखते हैं तो ये जो गुण हैं, ये गुणों के आधार पर हम निश्चित करते हैं, तय करते हैं कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। कि अब सवाल ये आ जाता है कि जब वहाँ पर किसी चीज़ का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब गुणों का प्रवेश कैसे हो गया, एक भेद कैसे आ गया चीज़ों में, गुणों में। ये तो जब हम भेद किसी में करते हैं और वो गुणों के आधार पर किया जाता है, लेकिन अभी रचना तो हुई नहीं है। और हमें बताया जाता है कि राधा स्वामी धाम हर रचना से परे है, गुणों से परे है, माया से परे है, काल से परे है। लेकिन इससे पहले तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव एक होना एक तमोगुण की निशानी है। और वहीं पे तो जब जो वहां पर चेतना थी वो एक सोई हुई थी, उसे कुछ ज्ञात नहीं था परमात्मा के बारे में, और परमात्मा को सब पता था। अब यहां पर एक दूसरा सवाल भी आ जाता है कि परमात्मा को असीम कहा जाता है, लेकिन तीनों पोलों में सिर्फ एक ही पोल है जो पॉजिटिव पोल है, वो भी असीम है, अनंत है। परमात्मा भी अनंत, पॉजिटिव पोल भी अनंत। दो अनंत कैसे हो सकते हैं? ये तो एक ऐसी बात होगी कि जैसे कि बच्चे जो परीक्षा देते हैं 100 में से उनके नंबर आते हैं। ये तो कुछ ऐसी स्थिति होगी कि 100 में से 300 नंबर आ गए। ये कैसे हो सकता है? मतलब कि जो असीम है, असीम एक ही होता है। 100 में से 100 ही आ सकते हैं, 100 में से भाई 200 या 300 नहीं आ सकते। तो अगर अनंत है, असीम है, तो एक ही होगा वो, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में स्थित है। अब क्लियर की जाती है आखिर में बात कि परमात्मा की सबसे पहली रचना राधा स्वामी धाम है, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पोल भी आ गए। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग बात है। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल ये प्रकृति का स्वभाव है। तो इसी कारण जब हम राधा स्वामी धाम की भी बात करते हैं तो वहां से भी नीचे आना पड़ता है, क्योंकि प्रवृत्तियां राधा स्वामी धाम से भी आगे हैं, क्योंकि वहां पर भी न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है। और ये सारी की सारी चीजें ये वीडियो में कही जा चुकी हैं। ये मैं कुछ अपने और से नहीं बोल रहा, ये पहली वीडियो में बता दिया है श्री प्रेम शरण सत्संगी जी ने। Out of the Supreme Being, positive infinite pole, was Radha.
and the sound which emanated from the great upheaval which took place within the Supreme Being was accompanied by Swami. So Radha Swami in fact became the first manifestation of the Supreme Being at the time of creation. अब अगर बात ज्ञान के आधार की ही की जाए तो कम से कम रचने से पहले ये थोड़ी सी चीज़ें अजीब लगती हैं कि जब दिशाएं तक नहीं बनी, सूर्य चंद्रमा तक नहीं बने, किसी भी चीज़ का निर्माण तक नहीं हुआ, तो निर्माण से पहले हम कैसे पता लगा सकते हैं कि क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव और क्या न्यूट्रल? कोई गुणों का आधार होता है किसी चीज़ में, हम जब पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं या न्यूट्रल देखते हैं, ये ऊर्जा होती है। लेकिन जब किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ, और ये जो भी हम भेद करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, ये गुणों के आधार पर होता है। तो हमें तो बताया जाता है कि गुणों का प्रवेश ही नहीं है, प्रकृति का प्रवेश ही नहीं है वहाँ पर। ये स्थिति राधा स्वामी धाम की रचना से पहले की स्थिति है, क्योंकि तब किसी भी चीज़ की रचना नहीं हुई थी और हमें बताया जाता कि पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल पोल भी थे। आखिर इतनी जल्दी ही क्या है? कम से कम रचना तो रच जाने दीजिए। फिर आदि क्रम में हमें बताया जाता है कि आप नीचे की जो माया है उससे प्रभावित हो गए, उस आकर्षण से आप आकर्षित हो गए कुछ सूरतें, इसलिए ऊपर से नीचे आना पड़ा। भैया अब सवाल यहाँ पर आ जाता है कि आकर्षण रचना का होता है। जब माया ने कुछ रचा ही नहीं तो आकर्षण किस बात का? तो कैसे ऊपर से नीचे आ गए? ये थोड़ा सा हवाई बातें लगती हैं। ये एक तरह की ज्ञान की जलेबी हो रखी है। तो हमारा हक बनता है सवाल को पूछना, बिना दिशाओं के क्या ऊपर क्या नीचे। जब हम परमात्मा को इन्फिनिट बोल देते हैं, कह देते हैं कि वो हर जगह है, असीम है, अनंत है, तो और किसी दूसरी चीज की सत्ता की जगह रह नहीं जाती। अगर ज्ञान के तौर पे देखा जाए, अगर चीज को घुमाना है तो वो फिर आप राधा स्वामी जो धुर का स्थान है, अंत का पद है, उससे ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल की बातें कह चुके हो और वहां से भी नीचे भी आ चुके हो, और इससे और अधूरेपन का प्रमाण क्या हो सकता है? जब हमें बताया जाता है कि राधा स्वामी धाम धुर का स्थान है, यही अंत का पद है और यहीं से कुल रचना रची गई है, हमें अपने आप में गर्व महसूस होता है। और जब हमें बताया जाता है कि वहीं से हम नीचे भी आ गए तो सारी चीज़ें एक शून्य हो जाती हैं, प्रभाव शून्य हो जाता है। और ये थोड़ा सा अजीब बात है कि रचना से पहले पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल पोल था, और ये अपने आप में तीन ऊर्जाओं को दिखाता है, गुणों को दिखाता है, प्रकृति के इस माया जाल को दिखाता है। तभी तो भाई आप ऊपर से नीचे आए हो। आदिक्रम का उल्लेख कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये कहानी बड़ी अद्भुत है और हमें इस पे विचार करना चाहिए। आखिरकार ये हमारे जीवन का सवाल है। हम सवाल भी नहीं कर सकते। मैं किसी भी संस्था से नहीं हूं और कह दिया जाता है कि विद्या तो बड़ी विद्या है। भाई मान लिया विद्या तो बड़ी विद्या है, लेकिन फिर इतनी पोथी छापी क्यों है? अगर हम जवाब नहीं दे सकते या हम बात भी नहीं कर सकते तो ये एक हवाई बातें तो शोभा नहीं देती। एक आधार होता है ज्ञान का। ये कोई विवाद की बात नहीं है, ये वाद है, ये सत्संग है। तो ये ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि इसमें एक अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो इसीलिए ये सारी कहानी आपके सामने रखना मेरा धर्म है। तो बाकी आपकी आस्था है और आपकी आस्था को प्रणाम, क्योंकि सबकी आस्थाएं अपने आप में पवित्र होती हैं और हमें सबका आदर भी करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात ज्ञान की है तो भाई ज्ञान की बात तो ज्ञान से ही होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का आधार तो सिर्फ ज्ञान ही है। अगर हमें बोला जाता कि आप चुप कर जाओ, आप सवाल ना करो, तो फिर एक बेईमानी से हो जाती है। तो सबको हक है बात पूछने का, बात करने का, लेकिन निंदा नहीं होनी चाहिए,
सबका सम्मान। चलिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपनी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।